Hello friends, I'm now with another video on biogeography of India. So you can make it out from the photograph here that I'm going to discuss about the coastal areas and the islands. You can see in the photograph mangrove forest, then you have coral reef, then dugong, which is also called sea cow. So what I'm going to cover in today's another important content for prelims exam, at the same time main examination about the coastal areas and islands in India. That is another important biogeographic regions of India. मैं ये इस वीडियो को भी बाइलिंगुअल रखूँगा, जिस प्रकार मैंने बाकी बायोजोग्राफिक वीडियो को मैंने बाइलिंगुअल रखा है. भारत में अगर हम तटवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा है और इसमें प्रमुख में दो बड़े द्वीप समूह आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह. समुद्र तट में पाए जाने वाले वनस्पति या वन जो है उनमें कई प्रकार की भिन्नताएं हैं. वो निर्भर करता है वहाँ के जलवायु पर. साथ साथ में अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें और लक्षद्वीप की बात करें तो वहाँ भी जलवायु के अनुसार वहाँ अलग अलग तरह के वनस्पति पाए जाते हैं. तो मैं आज इस वीडियो में यहाँ के जैव विविधता के बारे में चर्चा करूँगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट if you see the diversity of species found in the coastal areas and islands in India, the first very important type of plant species which we come across in coastal areas, that is a mangrove. You all know that Sundarban Delta, the largest mangrove forest which linked with Bangladesh, the neighboring country, is the West Bengal Sundarban Delta, 24 Pargana, the district of West Bengal. At the same time, if you go further down south to Tamil Nadu, you will find in Odisha, Bhitarkanika mangrove region. Then Chilika also has certain areas with mangrove forest. Krishna Delta, Godavari Delta. Then in Tamil Nadu, Pichavaram. Then Point Calimere up to Rameswaram. And if you just move towards the Kerala side, so the coast of Kerala you will find dotted with mangroves. Then Goa, then Karnataka, like Mangalore is, you'll find Kundapur in two places in Karnataka has very rich mangrove varieties. We can go up to the Ratnagiri, Achra, that is a part of the Maharashtra, which is part of the Konkan belt, and till you can Gujarat, both in the area of Kutch, at the same time Khambat, we find mangrove varieties there. We can also include two more union territories here, that is Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. If we talk about the island groups, Andaman Nicobar Island, both the group of islands together, Andaman Nicobar, have a vast mangrove forest. After West Bengal, Andaman Nicobar has the highest mangrove cover in India. In terms of if you take about the varieties of mangroves I am talking about, different types of mangroves will come across. But if you take the recent Indian Forest Survey report, which was brought in the few months back by the Forest Survey of India, so as per the new report, if you take area wise, geographical area wise, state or union territory, we find West Bengal still continue to be the highest, followed with Gujarat. You'll have the Gujarat, like I mentioned, Kutch and part of Khambat, that's the Cambay region, so has the higher. But if you include even union territory like Andaman Nicobar is a union territory, then the third rank will be the Andaman Nicobar. So I'll just tell you as per the new report that in terms of geographical area, West Bengal, that is a predominantly Sundarban Delta, then Gujarat, which has both Kutch and Khambat, and third comes Andaman Nicobar. So now let's go furthermore. Not only about mangrove forest, we also come across coral reefs. मैंग्रोव वन तथा कच्छ वनस्पति के अलावा हमें तट के करीब प्रवाल भित्ति क्षेत्र भी देखने को मिलता है. अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में काफ़ी अधिक संख्या में प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं. भारत में अगर हम प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्रों की बात करें तो भारत में 4 ऐसे
प्रमुख स्थान है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर फ्रिंजिंग रीफ पाया जाता है। दूसरा है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि पार्क स्ट्रेट, पार्क बे, इंडिया और श्रीलंका जुड़ता है। तो वहाँ पर मैंग्रोव के साथ साथ प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। दैट इज अगेन द फ्रिंजिंग रीफ यू विल कम अक्रॉस। थर्ड वन इज गल्फ ऑफ कच्छ, सौराष्ट्र, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, where again you'll find fringing and the platform type of reefs there. And then fourth place is Lakshadweep Islands, which is made of atoll, which is a coral islands, similar to what we have in part of if you see geography, you will see that worldwide in terms of Maldives. So we find similar to Maldives, we have in Lakshadweep the atolls. So these are the four important areas in India where you have diversity of coral reefs found there. सो मैं और भी जानकारी जो है, अगर हम द्वीपों की बात करें तो मैंने बताया कि इसमें दो प्रमुख हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अलावा भारत में और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, स्मॉल आइलैंड्स हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में मौजूद हैं और अरब सागर के साइड में, लेकिन बंगाल की खाड़ी में हमें ज़्यादा मिलता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, भितरकनिका उड़ीसा में जो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उनका नाम, जो जगह का नाम पड़ा है, कनिका द्वीप पे पड़ा हुआ है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। सुंदरबन डेल्टा में ही 100 से अधिक ऐसे छोटे छोटे द्वीपें हैं वहाँ पर। तो भारत में केवल ये नहीं सोचना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, छोटे छोटे द्वीप भी पाए जाते हैं। तो एक तरह का जैव विविधता के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा क्षेत्र आता है। अब अगर हम स्पीसीज़ के तौर पे हम बात करें कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है और यहाँ पाए जाते हैं, तो मैं चिलिका का मैं नाम लेता हूँ। मैं यू ऑल नो चिलिका लगून, दैट इज़ द लार्जेस्ट और कैन से बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया in terms of brackish water. Here what we find, the water from Bay of Bengal, the sea water enters into this lagoon. Chilka lagoon covers part of Puri and Ganjam districts of Odisha, and this lagoon has been listed as Ramsar site of India. ओडिशा में दो रामसर स्थल है, वन इज भितरकनिका मैंग्रोव जो कि केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, एंड द सेकेंड जो है वो है चिल्का लगून। चिल्का लगून एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, दैट इज़ द रामसर साइट। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1981 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम चिल्का लगून वॉज ऑल्सो अंडर थ्रेट. इट वॉज प्लेस्ड in Monterey record, which is a list of threatened Ramsar sites. But then with the conservation, the collective partnership of the local people, the Chilka Development Authority, Government of India, state government, Chilka was restored back. And then it was removed from Monterey record. आज वर्तमान में चिल्का लगून मॉन्ट्रेज रिकॉर्ड में नहीं है। जो वहाँ संकट था उसको हटाया गया है, और आज ये बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ पर लोगों की आजीविका के साथ साथ सतत और टिकाऊ संरक्षण प्रयास चिल्का में किया जा रहा है। तो ये भारत का महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि या नम भूमि या वेटलैंड है। इसके बारे में जो मैंने भी बताया, इसको ध्यान में रखना है। इस पर भी यूपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। कई चीज़ें जो वैज्ञानिक तौर पे यहाँ पर जानकारी हमें मिलता है कि अगर हम देखें, एक तरह का मछली है, तारा मछली, स्टार फिश बोलते हैं, पिसास्टर कहा जाता है, जो कि यहाँ पे पाया जाता है। फिर गहरे पानी में जाएं, जब समुद्र के गहरे पानी में जाएं, तो इसके अलावा और भी कई तरह का इनवर्टिब्रेट्स वगैरह पाया जाता है। और ये काफ़ी लंबे समय से, हज़ारों वर्षों से गहरे सागर में पाया जाता है, वहाँ पर उनका रहना वहाँ होता है। सुंदरबन आप सभी को पता है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। साथ साथ में यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB के अंतर्गत भी जैवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे इसको शामिल किया गया है। अबाउट द अदर स्पीसीज लाइक फॉर एग्जांपल amphibians and reptiles, again in coastal areas
एंड आइलैंड्स विल फाइंड रिच डाइवर्सिटी। यहाँ पे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण तरह का मछली के बारे में बताऊँगा। एक्चुअली है मछली लेकिन दिखता नहीं है मछली जैसा। मड स्कीपर बोलते हैं, जो कि आपको मैंग्रोव वन में खास तौर पे मिलेगा। छोटे छोटे होते हैं, वो कीचड़ पे अपना गुजारा करते हैं। कच्छ वनस्पति के बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। फिर यहाँ पर कई तरह क्रस्टेशियन या मोलस्क जैसे जीव भी पाए जाते हैं। मछलियों का स्वर्ग है ऐसे तटवर्ती क्षेत्र, और लोगों की आजीविका निर्भर करता है मत्स्य पालन पे। समुद्री गाय या सी काऊ या डुगोंग आपको मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में और कुछ भाग गुजरात में मिलता है। और यूपीएससी परीक्षा में डुगोंग डुगोंग यानी कि सी काऊ या समुद्री गाय के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है जैव विविधता के तौर पे। और कई संस्थाएं जो इस पे कार्य कर रही है, जैसे कि एक संस्था है एसओएस, सेव आवर सीज़। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूहों को कई प्रकार के खतरे जो वहाँ पर है, संकट हैं, जिनमें प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरे दोनों शामिल है। और ख़ासतौर पर जो मानव गतिविधियों के कारण जो खतरा हो रहा है, उस संदर्भ में शोध कार्य, अनुसंधान कार्य, संरक्षण कार्य भागीदारिता के साथ में किया जाता है। तो एसओएस जो संस्था है, उनका योगदान वहाँ पर है। तो ये लोगों के साथ मिलकर काम करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करें कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के तौर पे, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कछुओं को बचाने के लिए, जैसे ख़ास तौर पे आपको पता है कि ऑलिव रिडली कछुआ जो काफ़ी संख्या में गहीर माथा भितरकनिका के निकट स्थान है उड़ीसा में, अंडे देने के लिए तट पे आते हैं। तो उसमें गहीर माथा के साथ दूसरा स्थान आता है, रुसिकुलिया आता है, देवी नदी का मोहना या ऐश्वरी भी आता है, और धमरा नदी का भी आता है। तो ऐसे जगहों पे कछुओं के संरक्षण के लिए यूएनडीपी और भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहिम चलाया गया है, जिसे कहते हैं सेव कुरमा। कुरमा कछुओं को कहते हैं, जो उसके ट्रेड वगैरह के लिए। और साथ साथ भी जो मछुआरे होते हैं जो कि मोटर बोट का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण कछुओं का दुर्घटनापूर्ण मौत हो जाता है, जिसके लिए टेड, टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है, जिससे मछुआरे को पता चलता है कि समुद्र में इस स्थान पे कछुआ है, ताकि वो ना, और उनको दुर्घटना तौर पे जो उसकी मृत्यु हो जाती है उसे रोका जा सकता है। तो ये यूएनडीपी के साथ ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और साथ साथ में ट्रेड टू ट्राउंस टर्टल ट्रैप जो है, ये एक तरह का जो ढांचा है जिसको कहते हैं ट्रेंड, एक प्रकार का ढांचा होता है जो कि मछली पकड़ने के लिए ट्रॉल जाल में लगाया जाता है, या कछुए जैसे बड़े जानवरों को मछली के जाल में फंसने से बचाता है। तो ये भी एक जो मैंने बताया यूएनडीपी के द्वारा किया जा रहा है। और लक्षद्वीप में हम बात करें तो वहाँ पर मूंगा चट्टान यानी कि जो कोरल रीफ है, कोरल का बना हुआ प्रवाल भित्ति का, तो वहाँ पर समुद्री झील है, मूंगा चट्टानें और गहरे समुद्र। इन द्वीप पर रहने वाले लोगों की मूल आवश्यकताएँ जैसे कि भोजन, निर्माण सामग्री और जीविका के साधन मछली का शिकार तथा नारियल की खेती प्रदान करता है। तो वहाँ के लोग निर्भर करता है समुद्री संसाधनों पे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सामुदायिक तौर पे, आर्थिक महत्व के तौर पे। कई जगह तटवर्ती क्षेत्र में आपको पता है कि नमक का उत्पादन भी किया जाता है, तो सॉल्ट पैन बनाए जाते हैं। तो ये भी वहाँ भी कई प्रकार के पक्षियों को देखा जाता है। कुछ दुर्लभ प्रकार के प्रवासी पक्षी वहाँ पाए जा सकते हैं। साथ साथ में लोगों की आजीविका से निर्भर है। मूंगा का द्वीप इसलिए कि कोरल रीफ जो है, आपको पता है कि कोरल एक प्रकार का समुद्री जानवर होता है, प्राणी होता है, जो कि कॉलोनी में रहता है। देखने में ये पौधे जैसा दिखता है, लेकिन वास्तविक तौर पे पौधा होता नहीं है। यह समुद्री जीव होता है जो कि कॉलोनी में रहता है। और इन प्रवाल यानी कि कोरल के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, जिसे मूंगा पत्थर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके जुड़ने के कारण जो है भित्ति यानी कि रीफ का निर्माण होता है। सो कोरल रीफ इज़ बिल्ट बाय कोरल्स विच लीव ऑन द रीफ विच सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दे आर बेसिकली मरीन एनिमल्स belonging to the class of Cnidaria, and they live in colonies there. You also know that such kind of warm corals which are found to
live on the coral reef and they secrete the calcium carbonate which form the coral reef in a long term. They have a symbiotic relation with marine algae called zooxanthellae. यह जो समुद्री शैवाल जो है, एल्गी जो है, जिसको जूजेंथली या जू क्लोरेला वगैरह कहते हैं, यह कोरल पॉलिप के अंदर रहता है, जो कि पॉलिप जो है उसकी संरचना होती है, जो कि कप शेप्ड होता है, कप के आकार का होता है, उसके अंदर ये एल्गी या शैवाल रहता है जूजेंथली, और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना के प्रवाल या कोरल को देता है। बदले में कोरल जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण में जो एक तरह का रॉ मटेरियल का काम करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रवाल जो है, कोरल जो है, शैवाल एल्गी को देता है। तो इन दोनों के बीच में सहजीविता है। So there is a symbiotic relation between the marine algae zooxanthellae and the coral polyp. The coral polyp provides the carbon dioxide gas as a raw material which is used in the photosynthesis by the algae and prepare the carbohydrate glucose which is provided to the coral. So this intricate relation is there. Corals are colorless. प्रवाल का अपना कोई रंग नहीं होता है. The color is because of the algae. So you know that this particular relationship depends on temperature of ocean water, then the salinity of ocean water, that is the pH of the ocean water. So आप सभी लोग समाचारों में पढ़ भी रहे हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर कोरल ब्लीचिंग, मास कोरल ब्लीचिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवाल विरंजन, जैसी घटना हो रही है। साथ साथ में भारत में भी कई क्षेत्र में, जैसे मैंने प्रमुख क्षेत्रों में मैंने नाम बताया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर मन्नार की खाड़ी है, कच्छ का खाड़ी है और लक्षद्वीप है, वहाँ भी प्रवाल विरंजन हुआ है। सो द कोरल ब्लीचिंग happens when the algae comes out of the coral polyp and it is triggered because of the warming of ocean water, that is the global warming, and ocean acidification, that is the more of the acidification of ocean water. So when this algae come out of the coral polyp, then coral gets under stress and is not able to get the food and die. So nowadays Great Barrier Reef in Australia is under the danger because of climate change and the global warming impacts. But such kind of impacts are also felt in India, like particularly in Andaman Nicobar, Lakshadweep, Mannar, Gulf of Mannar and Gulf of Kutch. So ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है, साथ साथ पर्णपाती वन भी वहाँ पर है और मैंग्रोव वन भी पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि भारत का कौन सा स्थान है जहाँ ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसमें नाम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आता है। लेकिन आज बहुत संकट भी है, वहाँ पर तटीय अपरदन भी हो रहा है, कोस्टल इरोजन भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का प्रभाव भी पड़ रहा है, और अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो मानवीय आबादी के बढ़ने के कारण तो वहाँ पर जो भी मत्स्य पालन या जो भी मानवीय गतिविधियाँ हैं उनके कारण भी प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कुछ वहाँ पर विशेष प्रकार के प्रजाति जो अंडमान निकोबार में है, उसमें एक बहुत स्थानिक प्रजाति का नाम मैं बताऊँगा, मेगापोड बोलते हैं। यह पक्षी मुर्गा प्रजाति का निकट संबंधी है और लेकिन ये अंडे नहीं देती है। ये आपको अंडमान निकोबार में आपको ये वहाँ की स्थानिक प्रजाति एंडेमिक है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो कई जानकारी है जो मैंने अपनी किताब में दे रखा है, इसीलिए मैं बार बार आप सभी को मैं बुक के बारे में रेफरेंस देता हूँ मैं कि कुछ चीज़ें हैं जो इस वीडियोस में मैं बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिटेल में मेरी किताब में दिया हुआ है एंड ये तीनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। और ये किताब जो है जीकेपी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये दोनों आपको दुकानों में भी मिल जाएगा, प्लस साथ में अमेज़न, फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन जो वेबसाइट है उनके थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो इट इज़ अवेलेबल इन ऑल द 3 लैंग्वेजेस, English, Hindi and Marathi, and it is a multicolored book with all the 4 multicolors, and it has a lot of images, diagram, graphics. It covers previous question papers, pre-exam and the mains exam, and not only UPSC exam, it caters the need of all competitive exams wherever the environment questions are asked. And I have given every aspect, right from the ecological concept to biodiversity to climate change, pollution. You can take any topic including EIA and disaster management has been covered.
यह किताब रिवाइज़ किताब है। इसमें मैंने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA, आपदा प्रबंधन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ में इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी कंसेप्ट है, जैव विविधता के साथ साथ में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, उससे संबंधित जो जितने भी कंसेप्ट्स हैं या समस्याएं हैं, सभी चीज़ों को मैंने कवर किया है। और ये बहुत ही डायनेमिक बुक है जहाँ पर सरकारी योजनाएं, चाहे वो PIB में आता हो या गवर्नमेंट वेबसाइट में है या रिपोर्ट में है, संस्थाओं के बारे में, कन्वेंशंस के विषय में, जितने कंसेप्ट हैं, जो करंट एस्पेक्ट है, वो सारा कवर है। और इसकी ख़ास बात है कि इसमें कई सारा माइंड मैप है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव दोनों हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UPSC परीक्षा का हो, IAS एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, तो इस किताब को आप पढ़ें और डिटेल में पढ़ें। और पूरी जानकारी मैंने दे रखा है और इसको पूरा अच्छे से आप कीजिए ताकि एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे छूटे नहीं। सो आई होप दैट whatever I'm trying to bring about in all these videos of biogeography which I've covered so far, the important biogeographic zones of India, you are able to make sense of it. And the more detailed part you will find in the textbook. It's already available, and I hope that you make best use of that. So I'll end my video. I thank all of you for watching this video.